Hello students, I am Abhay Kumar going to discuss part 13 of the third chapter current electricity of class 12. The topic to be discussed in this part are Kirchhoff rules and its applications, that is condition of equilibrium of a Wheatstone bridge. It is a very important topic for short or long questions as well in the board examinations, either in 2 marks or 3 marks or 5 marks in some state boards. First of all, Kirchhoff's rule. A German scientist Kirchhoff deduced two important laws or rules for a complex DC सर्किट. जर्मन साइंटिस्ट किरचॉफ ने जटिल विद्युत परिपथ के लिए दो इंपॉर्टेंट लॉज को दिया, दो नियम दिया, जिसको किरचॉफ का रूल या किरचॉफ का नियम कहा जाता है. The two first rule of given by Kirchhoff is called junction rule, or abbreviated as KCL, Kirchhoff current rule. It is also called junction rule. And the second rule given by Kirchhoff is called Kirchhoff voltage rule, or mesh rule, or net rule, or loop rule, and it is abbreviated as KVL, Kirchhoff voltage rule. So first of all, Kirchhoff first rule. Kirchhoff first rule. It is also called junction rule or junction rule. And it is abbreviated as KCL, Kirchhoff current rule, KCL. It states that the algebraic sum of all currents coming towards a junction is equal to the total current directed away from the junction. That is sum of incoming current is equal to sum of outgoing current. जितना करंट किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के जंक्शन पर डिफरेंट वायर से किसी जंक्शन पर मीट करेगा, उतना ही करंट जो है बाहर की ओर निकल जाएगा. सम ऑफ करंट कमिंग टुवार्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट्स मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन. दिस इज कॉल्ड किरचॉफ फर्स्ट रूल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड किरचॉफ KCL or Kirchhoff junction rule, because it gives the total current. It gives the total current at a junction. The algebraic sum of total current at a junction is 0. The algebraic sum of all currents at a junction in an electrical circuit is equal to 0. Write down it. The algebraic sum of total currents at a junction in an electrical circuit or electric circuit is 0. In notation form, Kirchhoff first rule can be stated as sigma I equals to 0. It can be expressed in another form as total current, electric current coming towards a junction, is equal to total current moving
away from the junction. So Kirchhoff's first rule is very simple. It states that total current coming towards a junction of an electrical circuit, junction means all the wires are connected in the electric circuit at a point, is called junction. जितना भी वायर्स है, कंडक्टर्स है, अगर किसी सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक पॉइंट पर कनेक्टेड है, तो जिस पॉइंट पर सभी वायर्स कनेक्ट हुए हैं उसको हम जंक्शन कहेंगे. तो जंक्शन पर जितना भी करंट आएगा उसका जो सम होगा टोटल करंट, उतना करंट जो है जंक्शन से बाहर चला जाएगा. मतलब करंट का कोई लॉस नहीं होता है. इट मीन्स नो करंट, देयर इज नो करंट लॉस एट ए जंक्शन in an electrical circuit. So Kirchhoff's first rule is based on the law of conservation of electric charge, because electric current is rate of flow of electric charge. तो फर्स्ट रूल किस पर बेस्ड है? फर्स्ट रूल इज बेस्ड ऑन किर्चॉफ फर्स्ट रूल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज के कंजर्वेशन पर फर्स्ट रूल बेस्ड है, क्योंकि करंट का कोई लॉस नहीं हो रहा है जंक्शन पर. जितना करंट आया उतना करंट बाहर निकल गया, टोटल सम. तो इसका मतलब चार्ज का भी कोई लॉस नहीं हो रहा है. तो फर्स्ट रूल जो है, फर्स्ट रूल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. दिस इज ऑलवेज sorry, it is often asked in the board examinations, different board examinations, as objective questions. The Kirchhoff first rule, on which principle Kirchhoff first rule is based? It is based on 4 options usually are given. Or the right option is the law of Kirchhoff first rule is based on the law of conservation of electric charge. So total current coming towards a junction is equal to total current is equal to total current moving away from the junction. This is Kirchhoff's first rule. That is, the algebraic sum of total currents at a junction in an electrical circuit is 0. In notation form, it can be expressed as sigma is equal to 0. According to the convention, the current coming towards a junction of an electrical circuit is taken as positive, whereas those leaving the junction of the circuit are taken as negative. जो भी करंट परंपरा है, कन्वेंशन है कि जो भी करंट के डायरेक्शन के लिए कि जंक्शन की तरफ, जंक्शन की ओर आने वाला करंट पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा. तो कन्वेंशन यह है कि जो करंट डिफरेंट वायर्स में करंट किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर जंक्शन की तरफ आता है तो उसको पॉजिटिव लिया जाता है, और जो करंट जंक्शन से बाहर निकलेगा वो करंट जो है निगेटिव होगा. तो वी शुड अप्लाई दिस कन्वेंशन in an example to explain Kirchhoff's first rule. Suppose 4 different wires are connected at a junction. Junction point is O. 4 different currents are flowing in the junctions, in the wires. 4 different currents are flowing in 4 wires which are connected. 4 wires or 4 conductors which are connected at a junction O. Suppose I1 is the current flowing in the first wire, first conductor towards junction O. I2 is the current that is also flowing towards the junction, whereas I3, two another currents, I3 and I4 are flowing away from the junction. This is figure 1 to illustrate, to apply Kirchhoff's first rule. So we can apply Kirchhoff's first rule in this figure 1. I1, according to the convention, I1 and I2 both are taken as positive because they are flowing towards the junction. They are coming towards the junction. इन दोनों वायर्स में 2 करंट I1 I2 जंक्शन की तरफ आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन, परंपरा के अनुसार इसको पॉजिटिव लेंगे. ये दोनों करंट बाहर निकल रहा है, I3 और I4. तो किर्चॉफ रूल यहाँ फुलफिल हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है इस फिगर से, इस डायग्राम में. तो दैट इज I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3 प्लस I4. अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट इज 0. तो I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3. ना अलजेब्रिक सम लेना है तो प्लस तो हम सब में सपोज करेंगे ही साइन, लेकिन जो करंट बाहर निकल रहा है, दोज करंट्स विच आर मूविंग टू अवे फ्रॉम द जंक्शन पॉइंट ओ आर टेकन एज नेगेटिव. सो I3 एंड I4 both should be taken as negative here according to the convention.
while I1 and I2 both are flowing towards the junction O. So both currents I1 and I2 are taken as positive, while I3 and I4 are taken as negative. But Kirchhoff first rule states that the algebraic sum of all currents or all currents at a junction in an electrical circuit is 0. तो total current sigma, that is sigma is equal to 0. That is sigma is equal to 0. तो इसको अप्लाई हम इस सर्किट में कर रहे हैं, इस फिगर 1 में. तो I1 इज पॉजिटिव, सब करंट का सम लेना है, अलजेब्रिक सम. तो यहाँ भी प्लस दिए हैं साइन. हालांकि करंट बाहर निकल रहा है तो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन इट शुड बी टेकन एज नेगेटिव. I2 I3 प्लस फिर अलजेब्रिक सम है तो प्लस तो करेंगे, लेकिन करंट का डायरेक्शन I4 जो है फिर जंक्शन के अवे है, तो it is taken as negative, that is it is taken as negative minus I4, but total sum, algebraic sum of current is 0, that is 0. That means we get I1 plus I2 is equal to plus minus minus हो जाएगा, I1 plus I2 minus I3 minus I4 is equal to 0. Therefore I1 plus I2 is equal to I3 plus I4. Sorry, I1 plus I2 is equal to I3 plus I4. This is Kirchhoff first rule. This is the explanation of Kirchhoff first rule using the diagram which is shown in figure 1. जितना करंट जंक्शन पर आया I1 plus I2, sum of all currents coming towards the junction is equal to sum of all currents moving away from the junction. That is I1 plus I2. Sum of incoming currents is equal to I3 plus I4, sum of outgoing currents. जो करंट आया जंक्शन पर उसका सम, जो करंट बाहर निकला दोनों का सम जो है सेम होगा. मतलब कोई करंट का लॉस नहीं हो रहा है, दैट इज कोई चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज का लॉस नहीं हो रहा है. इसलिए सो देयरफॉर किरचॉफ फर्स्ट रूल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. अब यहाँ पर I1 जो है, अब इस पर जो है प्रॉब्लम भी हम सेट कर सकते हैं. इफ I1 इज 5 एम्पियर, I2 इज 3 एम्पियर, टोटल सम इज 5 plus 3 8 एम्पियर. If I3 is 2 ampere, then how much will I4? It will be 6 ampere, because 5 ampere I1, I2 is 3 ampere, 5 plus 3, sum of total incoming currents at the junction is 8 ampere, and I have taken I3 as 2 ampere. So remaining current I4 will be 6 ampere. So that 2 ampere I3 plus 6 ampere I4 will also equal to 6 plus 2, that is 8 ampere. So total incoming current is equal to total outgoing current, that is Kirchhoff first rule is verified, fulfilled. Kirchhoff first rule का वेरिफिकेशन हो जाता है कि I1 हम 5 एम्पियर लें और I2 3 एम्पियर, तो टोटल सम हो गया इनकमिंग करंट का 5 plus 3, that is 8 एम्पियर. और I3 अगर हम 2 एम्पियर ले लें तो I4 कितना होगा, ऐसा निकालने के लिए दिया जा सकता है, कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता भी है. तो I3 हम 2 एम्पियर लिए हैं और टोटल सम I1 प्लस I2 जो जंक्शन पर आया वह जो है 5 plus 3, 5 एम्पियर I1 और एंड 3 एम्पियर I2, that is 8 एम्पियर. और I3 is 2 एम्पियर only, therefore remaining current will be I4 will be certainly equal to 6 ampere. So that 6 ampere plus 2 ampere, that is 8 ampere. And incoming currents, that is current meeting at the junction, currents meeting at the junction is also 5 ampere plus 3 ampere, that is 8 ampere. 8 एम्पियर नेट करंट आया और I3 और I4 में दोनों मिल करके जो है I3 2 एम्पियर, तो I4 जो है 6 एम्पियर हो जाएगा. इस ढंग से प्रॉब्लम जो है हम कोई करंट अगर मिसिंग है, अननोन है, तो उसको हम किरचॉफ फर्स्ट रूल के हेल्प से हम ऑब्टेन कर सकते हैं. तो किरचॉफ रूल जो है कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए है. दोनों रूल जो है जिसके हेल्प से हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में किरचॉफ विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स रूल वी कैन डिटरमाइन द करेंट्स and potential differences in different arms and or different parts of an electrical circuit. तो किरचॉफ का फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल का उपयोग हम कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जिसमें कि बहुत सारे वायर का कनेक्शन है, क्लोज लूप्स हैं. तो उस सिचुएशन में किरचॉफ बोथ रूल्स का उपयोग यूज होगा और उसके हेल्प से सर्किट के डिफरेंट ब्रांच में करंट या डिफरेंट ब्रांचेज में पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि सिंपली जो कि हम ओम्स लॉ से नहीं कर सकते. ओम्स लॉ केवल सिंपल सर्किट में, डीसी सर्किट में यूज होता है. ओम्स लॉ के हेल्प से क्लोज लूप में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में, कैलकुलेट करने में, या डिफरेंट कॉम्प्लेक्स सर्किट में उसको ओम्स लॉ अप्लाई करने में डिफिकल्टी है, कठिनाई होती है. तो उसको दूर करने के लिए, रिमूव करने के लिए किरचॉफ ने डीसी सर्किट्स, मेनली डीसी सर्किट्स के लिए अपना 2 रूल्स दिया, जिसको किरचॉफ करंट रूल, किरचॉफ जंक्शन रूल और किरचॉफ वोल्टेज रूल सेकेंड रूल को कहा जाता है.
तो राइट डाउन नाउ किरचॉफ फर्स्ट रूल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. Kirchhoff's first rule is based on the law of conservation of electric charge. Law of conservation of charge or electric charge. Law of conservation of electric charge. ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से ये अक्सर पूछता है इसको. किरचॉफ फर्स्ट रूल इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. नन ऑफ दिस. द करेक्ट ऑप्शन इज किरचॉफ फर्स्ट रूल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. तो ये फर्स्ट रूल के बारे में हो गया. फर्स्ट रूल क्या है उसको हमने एक्सप्लेन किया, उसको डायग्राम की हेल्प से भी. अब हम ये इसको हम यूजुअली इसको जंक्शन रूल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन है इस रूल में कि टोटल करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज इक्वल टू जीरो. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड जंक्शन रूल. और यूजुअली चूँकि इसमें केवल करंट का जिक्र है, केवल करंट का, इससे हम केवल करंट, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस का कोई जिक्र नहीं है. इससे हम केवल करंट, अननोन करंट हम निकाल सकते हैं. बाकी करंट अगर मालूम है तो कोई अननोन करंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड किरचॉफ करंट रूल. I think this topic is should be clear to all of you. Now we should move to another rule given by Kirchhoff, which is called Kirchhoff voltage rule or Kirchhoff mesh rule or Kirchhoff loop rule or Kirchhoff net rule. Now Kirchhoff's second rule, which is also called mesh rule or loop rule or Kirchhoff's voltage rule. It is abbreviated as KVL. K for Kirchhoff, V for voltage, L for law or rule. It states that Kirchhoff's second rule states that the algebraic sum of total potential differences or change in potential differences in different branches of a closed loop or of a closed mesh or of a closed circuit is equal to 0. That is, total potential differences of different parts of a closed circuit is equal to 0. That is sigma v equals to 0. In notation form it can be expressed as sigma v equal to 0. कोई क्लोज सर्किट है, कोई बंद परिपथ है, तो उसके डिफरेंट पोर्शंस में, उसके डिफरेंस भागों में टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज होगा या टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह 0 होना चाहिए. सो इट इज कॉल्ड किरचॉफ्स वोल्टेज रूल. हेंस इट इज कॉल्ड किरचॉफ सेकेंड रूल. किरचॉफ सेकेंड रूल इज ऑल्सो कॉल्ड किरचॉफ वोल्टेज रूल. Now write down it. The algebraic sum of total potential differences और change in potential difference, वैसे भी आप कह सकते हैं, total potential differences in different branches of a closed loop or a closed mesh is 0. Closed loop or closed mesh or closed circuit or closed circuits or a closed circuit is equal to 0. टोटल चेंज पोटेंशियल डिफरेंस का किसी सर्किट में वह 0 होना चाहिए. अगर वह इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट होगा. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन होगा.
Therefore, Kirchhoff's second rule is based on the law of conservation of energy. Kirchhoff's second rule law of conservation of energy पर बेस्ड है, जो कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पूरे क्लोज लूप का डिफरेंट पूरे अलग अलग ब्रांचेज का किसी क्लोज सर्किट के अलग अलग ब्रांचेज का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या टोटल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है वह जीरो होता है, जिससे कि इससे क्लियर होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस न तो इंक्रीज करेगा न ही डिक्रीज करेगा, क्योंकि ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस ऑल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंसेस आर जीरो. So it is in accordance with the law of conservation of energy. In notation form, we can write it as sigma v, that is algebraic sum of all the potential differences in different branches of a closed circuit is equal to 0. Sigma v is equal to v is equal to I into R according to Ohm's rule. So we can write here IR for V, sigma IR equals to 0. Means the algebraic sum of product of currents and resistances in different branches of a closed circuit or closed mesh is equal to 0. Sigma V means V is equal to IR from Ohm's law. So sigma IR is also equal to 0. Sigma V or sigma IR equals to 0. This is the notation form of Kirchhoff's second rule, which is also called Kirchhoff's voltage rule, KVL. Kirchhoff's voltage rule I have written here KVL. शॉर्ट में आप केवीएल कह सकते हैं. किरचॉफ फर्स्ट रूल को केसीएल कहा जाता है. तो ये हो गया सिग्मा भी इक्वल टू सिग्मा आई आर इक्वल टू 0. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ सेकेंड रूल. नाउ इट इज बेस्ड ऑन, राइट डाउन, इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. किरचॉफ सेकेंड रूल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अब इसको हम किरचॉफ सेकेंड रूल को हम अप्लाई करेंगे डिफरेंट एक दो एग्जांपल्स में क्लोज सर्किट में इसको अप्लाई करेंगे, जिससे कि किरचॉफ सेकेंड रूल को इलस्ट्रेट किया जा सके, एक्सप्लेन किया जा सके. और उसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन जो है किसी लूप में, क्लोज लूप में करंट का डायरेक्शन कब पॉजिटिव कब निगेटिव, ये भी हम देखेंगे. Now the explanation of Kirchhoff's voltage rule or Kirchhoff's second rule. We can illustrate or we can explain Kirchhoff's second rule or Kirchhoff's voltage rule by taking the given two closed circuits A, B, C, A and A1, B1, C1, A1. Both circuits consisting of three resistors of resistances R1, R2 and R3 and currents I1, I2 and I3. In figure 2a, in the closed circuit ABCA, there is no cell inside the closed loop. So total EMF, total potential, total EMF of the closed loop without any cell is 0. अगर किसी बंद सर्किट में, क्लोज सर्किट में कोई सेल नहीं है तो उसका EMF हम 0 सपोज करेंगे. और सेकेंड सर्किट इन फिगर 2b, a closed circuit is given A1, B1, C1, A1 is taken. It also consists of three resistors of resistances R1, R2 and R3 in three arms A1, B1, B1, C1 and A1, C1 of the closed circuit. But the difference in two closed circuits is there are two cells of EMF E1 and A2 are connected in the closed loop A1, B1, C1, A1, whereas there is no cell in the first closed loop which is shown in figure 2a, A, B, C, A. पहला जो क्लोज लूप है A, B, C, A, उसमें कोई सेल नहीं है, इसलिए इसका EMF जो है 0 सपोज करेंगे. किसी क्लोज लूप में अगर कोई सेल अंदर में नहीं है, यहाँ जो भी करंट आई आ रहा है, करंट फ्लो कर रहा है आई, ये करंट बाहर से आ रहा है, बाहर से सेल जोड़कर उस सेल को हमने कनेक्ट नहीं डायग्राम में शो नहीं किया है, तो ये बाहर से एक्सटर्नल सेल से करंट आई फ्लो कर रहा है. ए पॉइंट पर आया, ए पॉइंट पर डिवाइड हो गया दो पार्ट में, I1 और ए फिर I3 थ्रू रजिस्टर R3. फॉर कन्वीनियंस आई हैव टेकन I3 फॉर द करंट थ्रू द रजिस्टर्स
for the through the register of resistance R3. I1 for the I1 current I1 is taken for the register of resistance R1, and this same current is transferred into resistor R2, but I1 is taken as I2 here, but this same current I1 flows through resistor R2, but due to suffix R2 it is taken as I2. The same current I1 is taken as I2 in branch BC of the closed circuit ABC in the branch BC. तो इसका EMF जीरो हो जाएगा, इसमें कोई बैक सेल नहीं है, तो इसका अंदर में कोई सेल नहीं है, इसका EMF जीरो हो जाएगा। और इसमें सेकेंड फिगर 2B में जो सेकेंड क्लोज सर्किट है A1 B1 C1 A1, इसमें दो सेल्स है जिसका EMF E1 है। फर्स्ट ब्रांच A1 B1 में जो रजिस्टर लगा है उसका रेजिस्टेंस R1 है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। इसमें करंट जो है I1 इसमें बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इंटर कर रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव में इंटर कर रहा है। मतलब निगेटिव मीन्स टर्मिनल्स मीन्स इट इज एट लो पोटेंशियल, वेयर एज पॉजिटिव टर्मिनल इज एट हाई पोटेंशियल। तो इसमें करंट जो है इंटर कर रहा है निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर कर रहा है, देयरफॉर दैट इज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। सो ईएमएफ ऑफ द बैटरी लो से हाई में जा रहा है, मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा है, मैंने बढ़ा हुआ मैंने पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, तो लो से हाई तरफ की तरफ मैंने करंट का डायरेक्शन है इसमें I1 का। सो ईएमएफ ऑफ दिस सेल इज टेकन एज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव, लो से हाई की तरफ जा रहा है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल मैंने पोटेंशियल बढ़ रहा है, देयरफॉर द सेल ऑफ ईएमएफ इज टेकन एज पॉजिटिव। वेयर एज इन दिस सेल सेकेंड सेल ऑफ ईएमएफ E2 in the branch B1 C1 in the part B1 C1 of the closed circuit A1 B1 C1 A1, the current I2, same current I2 passed which flows through resistor of resistance R2, it enters, the same current I2 enters from positive terminal, this terminal is positive terminal। जो वर्टिकल लाइन होता है, सेल का सिंबल होता है दो लाइन से, दो वर्टिकल लाइन से, दो वर्टिकल पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं सेल का सिंबल, और एक प्लस हो गया वर्टिकल जो लॉन्ग लाइन है वर्टिकल लाइन इज टेकन एज इट रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, वेयर एज द स्मॉलर लाइन रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। दिस इज द सिंबल ऑफ ए सेल। तो यहाँ देखें आप करंट जो है लॉन्ग वर्टिकल लाइन से पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में इंटर कर रहा है, मीन्स बैटरी के सेल के हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में इंटर कर रहा है, मतलब नेगेटिव टर्मिनल की ओर इंटर कर रहा है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्या होगा, पोटेंशियल घट रहा है, माने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर करंट जो है इंटर कर रहा है, तो देयरफॉर इसमें डिक्रीज होगा। पोटेंशियल में डिक्रीज होने से पॉजिटिव से नेगेटिव है, माने हायर टू लोअर पोटेंशियल में करंट इंटर कर रहा है, तो सेल का ईएमएफ को इसमें नेगेटिव माना जाएगा, इसलिए कि पोटेंशियल जो है पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर घट रहा है, और यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव में इंटर कर रहा था, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो वहाँ पोटेंशियल लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल था, तो वहाँ इंक्रीज कर रहा है पोटेंशियल, और यहाँ पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर करंट का डायरेक्शन है, हाई से लो पोटेंशियल, तो देयर इज डिक्रीज इन पोटेंशियल difference, so it is the direction of EMF is taken as negative here when current enters from its positive terminal, that is at positive potential, to negative terminal, that is at negative potential. So EMF of the cell in this case E2 should be taken as negative. So here in the closed circuit figure 2B, cell E1 EMF of the cell, first cell of EMF E1 is taken as positive, विकाउट करंट का जो डायरेक्शन है I1 इसमें इंटर कर रहा है निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में इंटर कर रहा है, सो पोटेंशियल इंक्रीजिंग है, देयरफॉर ईएमएफ ऑफ द सेल इज टेकन एज पॉजिटिव। व्हाइल इन द सेकेंड सेल द करंट इंटर्स फ्रॉम करंट I2 इंटर्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, दैट इज एट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर से लोअर, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है फॉल करेगा, देयरफॉर ईएमएफ ऑफ द सेल शुड बी टेकन एज नेगेटिव। सो E2 इज नेगेटिव हेयर, नेट देयरफॉर नेट ईएमएफ ऑफ द सर्किट क्या हो जाएगा, प्लस E1 माइनस E2, और इस केस में सेल नहीं है तो ईएमएफ टोटल जो है जीरो हो गया, E इक्वल टू जीरो। अब हम किरचॉफ सेकंड रूल दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी ए बी पार्ट के लिए करंट और डायरेक्शन ऑफ करंट जो है का डायरेक्शन क्लोज लूप में आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम ले सकते हैं, कंसीडर सपोज कर सकते हैं। इफ क्लॉकवाइज इज टेकन एज नेगेटिव देन एंटी क्लॉक डायरेक्शन इन एंटी क्लॉकवाइज इट शुड बी पॉजिटिव। तो कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस का जो डायरेक्शन होगा, पोटेंशियल डिफरेंसेस शुड बी आइदर along क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और आइदर ऑफ इट शुड बी पॉजिटिव और निगेटिव। हम सपोज कर सकते हैं क्लॉकवाइज में भी पॉजिटिव और निगेटिव
या एंटी क्लॉकवाइज में भी पॉजिटिव और निगेटिव उसको सपोज कर सकते हैं। एक डायरेक्शन में अगर हम क्लॉकवाइज में पॉजिटिव ले लेते हैं आई प्रोडक्ट ऑफ I1 इंटू R1, तो एंटी क्लॉकवाइज में जो है अपोजिट निगेटिव, उस केस में निगेटिव लेना होगा। तो ब्रांच में, डिफरेंट ब्रांचेज में हम प्रोडक्ट पोटेंशियल डिफरेंसेस को किसी भी डायरेक्शन में चूज कर सकते हैं, आइदर इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंड आइदर ऑफ द डायरेक्शन शुड बी टेकन एज पॉजिटिव और निगेटिव। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई Kirchhoff's second rule in both circuits. In figure 2a, using applying Kirchhoff's second rule in the closed loop or closed mesh closed circuit ABCA, the product of current and resistances in different branch of a circuit। अब ये डायरेक्शन हम ऐसे, ये जो है पाथ का जो डायरेक्शन है A to B, अब IR का जो प्रोडक्ट है, तो करंट और अगर प्रोडक्ट यूजुअली जो करंट है, करंट का डायरेक्शन और पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस R1, I1 R1 दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होगा तो उसको हम उस प्रोडक्ट ऑफ I इंटू R पोटेंशियल डिफरेंस को यूजुअली निगेटिव लिया जाता है। और अगर प्रोडक्ट ऑफ करंट का डायरेक्शन और पोटेंशियल डिफरेंस का जो रजिस्टर का जो डायरेक्शन है, कनेक्शन है, वह अगर अपोजिट है तो उस सिचुएशन में द प्रोडक्ट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द रजिस्टर्स, अक्रॉस द एनी रजिस्टर IR शुड बी टेकन एज पॉजिटिव। लेकिन कन्वेंशन है, अगर इसमें हम क्लॉकवाइज में अगर हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में जो डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो उससे पोटेंशियल डिफरेंस across the resistor should be negative in that case। तो I1 R1 प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंसेस इन डिफरेंट ब्रांच ऑफ ए सर्किट, हम क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी सपोज कर सकते थे। एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो I3 R3, एंटी क्लॉकवाइज को भी पॉजिटिव मान सकते हैं तो I3 R3। अब यहाँ देखिए करंट का डायरेक्शन और ये CA CB पाथ जो है अपोजिट हो गया, C से B की ओर यहाँ से चले, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो C से B की तरफ और C से B के लॉन्ग रजिस्टर कनेक्टेड है, पाथ हो गया, और ये जो है डायरेक्शन करंट का जो है उस पाथ के अपोजिट हो गया, तो उस केस में उसको नेगेटिव लेना होगा। तो अगर ये I3 R3 अगर हम पॉजिटिव लेते, सपोज करते I3 इंटू R3, तो ये नेगेटिव हो जाता। अब फिर ये जो है देखें यहाँ पर B से A आ रहा है, पाथ इज B along B to A एंड करंट इज फ्रॉम A टू B। सो फिर उस सिचुएशन में भी फिर -I1 R1 -I2 R2 प्लस I3 R3 इक्वल्स टू 0। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस चूँकि पूरे क्लोज पाथ का 0 होगा। और अगर इस ढंग से दो पाथ में नंबर ऑफ पाथ्स जिसमें करंट का डायरेक्शन सेम है उस पाथ को फॉलो करते हैं तो A टू B जो रजिस्टर कनेक्टेड है वह पाथ, करंट का पाथ और रजिस्टर का जो कनेक्शन है दोनों का डायरेक्शन, मतलब पाथ और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। फिर B से C है along B to C, फिर करंट का नंबर ऑफ रजिस्टर्स इन विच डायरेक्शन ऑफ करंट्स आर सेम शुड बी प्रेफरेंस, उसको प्रेफरेंस हम करते हैं तो इस पाथ को प्रीफर करते हैं A टू B, B टू C। तो करंट और रजिस्टर जो कनेक्टेड है तो दोनों का डायरेक्शन जो है पाथ, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ पाथ, बोथ आर सेम। सो वी हैव अप्लाइड किरचॉफ सेकंड रूल, I1 R1 प्रोडक्ट ऑफ करंट इन एंड रेजिस्टेंसेस इन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ ए सर्किट। तो AB ब्रांच में AB वायर है, उसका रेजिस्टेंस R1 है, करंट I1 है। अब इस पाथ को हम फॉलो किए हैं, ये दो पाथ R1 R2 दो रजिस्टर्स में करंट का डायरेक्शन सेम है, तो इस पाथ को हमने प्रीफर किया है। तो इसमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस को हम पॉजिटिव ले रहे हैं। इस केस में हमने बताया कोई भी पाथ होगा, अगर एंटी क्लॉक भी चलते इसको भी हम पॉजिटिव ले सकते थे I3 R3, तब यहाँ जो है करंट का डायरेक्शन और रेजिस्टेंस के पाथ के अगेंस्ट होता तो ये निगेटिव हो जाता, -I3 R3 -I2 R2 -I1 R1 इक्वल टू 0, वैसा भी हम कर सकते थे। लेकिन नंबर ऑफ रजिस्टर्स जिसमें करंट का डायरेक्शन सेम है उस पाथ को यूजुअली कंसिडर किया जाता है। तो ये पाथ हम कंसिडर कर रहे हैं AB BC एंड CB। अब यहाँ AC डायरेक्शन ऑफ करंट रजिस्टर्स जो कनेक्टेड है इसमें, इस आर्म में, AC आर्म में, तो करंट का डायरेक्शन जो है इस पाथ के अगेंस्ट है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ नेगेटिव लेंगे। I1 R1 प्लस, अब देखिए B से C के लॉन्ग पाथ जो है रजिस्टर R2 कनेक्टेड है, तो पाथ और करंट दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ हम सपोज कर रहे हैं पॉजिटिव I2 इंटू R2। अब यहाँ देखें हम करंट का डायरेक्शन जो है पाथ है C से B, इस ढंग से पाथ देख रहे हैं, क्लॉकवाइज में चल रहे हैं। क्लॉकवाइज में हमने आई हैव टेकन क्लॉकवाइज डायरेक्शन A टू B, B टू C, C टू A, लेकिन यहाँ करंट का डायरेक्शन यहाँ A पॉइंट पर करंट डिवाइड हो गया है तो I3 इंटू R3,
तो यहाँ डायरेक्शन अपोजिट हो गया, क्लॉकवाइज के अपोजिट हो गया यहाँ पर. सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 दैट इज I3 इंटू R3 फ्रॉम ओम्स लॉ इज टेकन एज नेगेटिव R3 और इक्वल्स टू 0. टोटल करंट, जो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंसेस इन डिफरेंट आर्म्स, देयर आर 3 आर्म्स इन विच 3 रेजिस्टर्स आर प्रेजेंट. सो प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस इन डिफरेंट आर्म्स इज इक्वल टू द टोटल EMF ऑफ द सर्किट इज 0. टोटल EMF ऑफ द सर्किट और 0. यहाँ कोई सेल अंदर में नहीं है, इसलिए टोटल EMF ऑफ द सर्किट इज 0 इन फिगर 1. सो दैट इज 0. So this is the illustration of this is the use of Kirchhoff's second rule in figure in a closed circuit A, B, C, A. Now we can apply it, same rule. This can be applied in another circuit, adjoining circuit figure 2B, which is A1, B1, C1, A1. केवल डिफरेंस है कि इसमें 2 सेल है जिसका EMF E1 और E2 है, और इसमें कोई सेल नहीं था तो EMF 0 हो गया. और किर्चॉफ सेकंड रूल से भी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का जो चेंज होगा एलोंग ए क्लोज पाथ इज 0. देख सकते हैं कैसे 0 होगा, यहाँ पर ओम्स लॉ भी अप्लाई करके. ये तो किर्चॉफ रूल से हो गया, अप्लाई हमने कर दिया फिगर 2A में. मैं समझता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर होगा. अब इसको अगर ओम्स लॉ से अप्लाई करें डिफरेंट ब्रांचेज में, AB के अलॉन्ग VA माइनस VB यूजिंग ओम्स लॉ, अल्टरनेटली भी हम देख सकते हैं कैसे 0 हो जाएगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अल्टरनेटली यूजिंग ओम्स लॉ इन डिफरेंट ब्रांचेज. ओम्स लॉ और पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, A और B पॉइंट के बीच VA माइनस VB इजकल टू I1. करंट जो है AB ब्रांच में, AB रजिस्टर में, AB कंडक्टर में जिसका रेजिस्टेंस R1 है, I1 है, I1 इंटू R1. फिर आप लें इसमें BC के लॉन्ग VB माइनस VC इजकल टू I2 इंटू R2. और फिर आप कंसिडर करें, अब देखिए VC क्लॉकवाइज लिए हैं तो VC माइनस VA, लेकिन करंट का डायरेक्शन उल्टा है तो पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव लेना होगा. VC माइनस VA इक्वल्स टू माइनस I3. करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया क्लॉकवाइज, यहाँ एंटी माने रिवर्स हो गया एंटी क्लॉक इस पार्ट में, AC पार्ट में जिसका रेजिस्टेंस R3 है, करंट I3 है. तो पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव I3 माइनस I3 इंटू R3. अब इसको हम सम कर दें तो देखिए प्लस VA माइनस VA विल कैंसिल आउट, प्लस VC माइनस VC, प्लस VB माइनस VB. तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द क्लोज पाथ starting from A to B, B to C and फिर again returns back to A. It is 0. यहाँ से चले, स्टार्ट किए थे A से, फिर A पर पहुँच गए. A पर पोटेंशियल कितना था, जितना पहले था उतना ही पोटेंशियल बाद में भी रहेगा V at A. अब फिर यहीं पर लौट गए तो V at A माइनस V at A इक्वल टू 0. तो जस्टिफाई हो गया, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है 0 हो गया, सभी कैंसिल हो गया. तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द क्लोज लूप, टोटल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस और टोटल potential difference of the closed loop is 0 is equal to I1 R1 plus I2 R2 minus I3 R3. ये देखिए आपका आगे जो किर्चॉफ रूल से अप्लाई किए थे वही रिजल्ट यहाँ ओम्स लॉ से भी अप्लाई किए. तो I1 R1 प्लस I2 R2 माइनस I3 R3 इक्वल टू 0. और पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट का लेकर के यूज करके हम सबको सम कर दिए तो सभी कैंसिल हो गया. प्लस VA से माइनस VA कैंसिल, प्लस VB से माइनस VB कैंसिल, प्लस VB यहाँ माइनस VB कैंसिल, प्लस VC माइनस VC कैंसिल. तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस एलोंग द क्लोज लूप इज इक्वल टू ऑफ ए क्लोज लूप, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द क्लोज लूप इज 0. A से स्टार्ट किए थे, बैक हो गए A तक. A का पोटेंशियल जो भी हो, मान ली VA है, फिर वहीं पर बैक हुए तो फिर VA माइनस VA इक्वल टू 0. ऐसे भी होना था. ओम्स लॉ और किर्चॉफ रूल अप्लाई किए तो वहाँ भी हुआ 0. तो ये फर्स्ट सर्किट में फिगर 2A में ABCA में किर्चॉफ सेकेंड रूल को अप्लाई करके हमने दिखलाया. अब हम अप्लाई करते हैं किर्चॉफ सेकेंड रूल को फिगर 2B में. नाउ अप्लाइंग किर्चॉफ सेकेंड रूल इन फिगर 2B. इसके लिए फर्स्ट फिगर को हम मिटा देते हैं. नाउ यूजिंग KVL किर्चॉफ वोल्टेज रूल विच इज किर्चॉफ सेकेंड रूल को शॉर्ट फॉर्म में KVL कहा जाता है, किर्चॉफ वोल्टेज रूल इन फिगर 2B. वी हैव, अब इसमें भी क्लॉकवाइज पाथ हम फॉलो करते हैं. I1 इंटू R1 product of current in and resistance in different branches of a circuit. I1 into R1
I1 इंटू R1। अब देखिए करंट ईएमएफ करंट अब जो है यहाँ पर इंटर कर रहा है सेल में निगेटिव से पॉजिटिव, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजिंग है, तो ईएमएफ सेल का पॉजिटिव लेंगे तो प्लस E1, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना है, प्लस E1। अब चले यहाँ पर BC ब्रांच में, B1C1 ब्रांच में करंट I2 है, रेजिस्टेंस R2 है, तो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस उसका सम लेना है, तो प्लस I2 इंटू R2, यहाँ तक हो गया। अब देखिए सेल में करंट जो है अब दूसरा सेल है उसके पॉजिटिव से निगेटिव में इंटर कर रहा है करंट I2, इसका मतलब है करंट ईएमएफ जो है सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में, हाई से लो में लो, हाई पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में इंटर कर रहा है, मतलब हाई से लो, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेल के दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा, डिक्रीज करेगा, हाई टू लो है तो डिक्रीज करेगा, फॉल करेगा। यहाँ लो से हाई था तो इंक्रीज कर रहा था, तो ये में पॉजिटिव लिया गया। अब हाई टू लो है तो पोटेंशियल डिफरेंस फॉल करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस फॉल करेगा तो सेल का ईएमएफ निगेटिव लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है माइनस E2 टोटल ईएमएफ लेना है, तो जितना भी आपका सेल है या रजिस्टर है, क्योंकि सेल का भी कुछ अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस इसका नेग्लिजिबल है, तो सेल का भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको भी कंसीडर किए हैं। क्योंकि टोटल अलजेब्राइक सम ऑफ ए क्लोज सर्किट इंक्लूडिंग ईएमएफ इंक्लूडिंग द सोर्स ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू जीरो। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये नहीं है कि केवल प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस उसी का प्रोडक्ट का अलजेब्राइक सम जीरो होगा किसी क्लोज पाथ में, बट rather including source of EMF, which is also EMF is also potential difference। तो बैटरी जो सेल है उसका भी EMF है, उसका भी सम टोटल, मतलब रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस सेल का EMF टोटल मिल करके जो है क्लोज सर्किट का, क्लोज सर्किट में अगर प्रेजेंट है तो टोटल सम जीरो हो जाएगा, मतलब सिग्मा भी प्लस सिग्मा ई, टोटल मतलब सिग्मा आई इंटू आर प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंसेस इन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ ए सर्किट प्लस टोटल EMF इंक्लूडिंग EMF ऑफ द टोटल EMF ऑफ द सर्किट बोथ विल इक्वल टू जीरो। सिग्मा भी जीरो मतलब है सिग्मा भी प्लस सिग्मा ई टोटल EMF ऑल टुगेदर will is equal to 0. So we have taken here EMF cells EMF also, which is also potential difference. Now I2 R2 और now from C1 to B, देखिए क्लॉकवाइज हम कंसीडर कर रहे हैं, तो B1 to C1 हो गया। अब यहाँ C पर जो है C1 पर करंट, ये I2 करंट जो करंट I1 था वही इसमें फॉर कन्वीनियंस हमने R2 रजिस्टर से जो करंट I2 आया वही I1 ही I2 है, लेकिन रजिस्टर में सफिक्स R2 है इसलिए यहाँ भी सफिक्स हमने 2 दिया है I2। तो यहाँ से I2 करंट इधर से जो है एक पार्ट I1 था, I का टोटल करंट बाहर से आया है बैटरी से, तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था I1, इधर I3, इसमें R3 में। अब यहाँ पर I2 प्लस I3 मिल करके, चूँकि I2 ही I1 है, तो I1 प्लस I3 मिल करके फिर I हो जाएगा। तो जितना करंट इंटर किया A1 पर इंटर किया, C1 से जो है उतना ही बाहर निकलेगा, मतलब किरचॉफ जंक्शन रूल यहाँ अप्लाई हो रहा है, यहाँ फुलफिल हो रहा है। जितना करंट इंटर किया उतना ही बाहर निकल रहा है करंट। सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, जो कि किरचॉफ फर्स्ट रूल के अकॉर्डेंस है, इन अकॉर्डेंस है, किरचॉफ फर्स्ट रूल के अनुसार है। तो नाउ इन ब्रांच वन ब्रांच इज लेफ्ट विच इज A1C1। अब इसमें देखिए करंट का डायरेक्शन हम तो क्लॉकवाइज फॉलो कर रहे थे, लेकिन इसमें करंट एंटी क्लॉक है, करंट का डायरेक्शन रिवर्स है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ I3 माइनस I3, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस I3 इंटू R3 शुड बी टेकन एज निगेटिव। तो करंट का डायरेक्शन जो है यहाँ पर बाकी दो ब्रांच के में जो करंट का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, उसके अगेंस्ट माने एंटी क्लॉकवाइज है। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज टेकन एज वन डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव लेते हैं तो अनदर डायरेक्शन में निगेटिव होगा, अगर इसी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज निगेटिव हो जाता है। तो माइनस C2 माइनस पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव हो जाएगा R3 के क्रॉस I3 इंटू R3, चूँकि करंट का डायरेक्शन चेंज है, इक्वल्स टू जीरो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड रूल। टोटल अलजेब्राइक सम ऑफ करंट इज टोटल पोटेंशियल डिफरेंसेस ऑफ द क्लोज सर्किट इज इक्वल टू जीरो, सो इट इज टेकन एज जीरो एंड वी शुड ऑल्सो राइट इट एज I1 R1 प्लस I2 R2 माइनस I3 I1 R1 प्लस I2 इंटू R2 माइनस I3 इंटू R3 इक्वल्स टू E1 इज पॉजिटिव, साइड चेंज करेंगे तो E1 निगेटिव हो जाएगा, E2 इज निगेटिव, क्योंकि इस सेल में करंट जो है पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल में इंटर कर रहा है, देयरफॉर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो सेल का होगा वो डिक्रीज करेगा, फॉल करेगा, तो EMF भी जो है निगेटिव होगा।
तो ये हो जाएगा E2 इक्वल्स टू E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। तो ये हो गया सेकेंड सर्किट। फिगर 2B में हमने अप्लाई किया किरचॉफ सेकेंड रूल। ये साइड चेंज किया तो E2 नेगेटिव था यहाँ अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन, तो E2 पॉजिटिव हो गया, E1 प्लस था माइनस हो गया। तो आई थिंक द एक्सप्लेनेशन ऑफ किरचॉफ वोल्टेज रूल और किरचॉफ सेकेंड रूल शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू बाय यूजिंग टू डायग्राम्स in figure 1A and figure 2B. Again reminding that Kirchhoff voltage rule or Kirchhoff second rule is based on the law of conservation of energy. Now we have to apply Kirchhoff rules, that is applications of Kirchhoff rule in a special arrangement of four resistances which is called Wheatstone bridge, which was constructed by an English scientist Wheatstone ने कंस्ट्रक्ट किया था 4 रेजिस्टेंसेस का एक स्पेशल अरेंजमेंट, जिसकी हेल्प से हम कोई अननोन रेजिस्टेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो दिस स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो नाउ वी हैव टू डिस्कस द कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब हम किरचॉफ के दोनों लॉज का यूज करके व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु हिंदी में, ये संतुलन की शर्त कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को ऑब्टेन कर सकते हैं। द कंडीशन इज P/Q इक्वल टू R/S। Now we have to apply Kirchhoff's first and second rule to obtain the condition of equilibrium of a Wheatstone bridge. The condition is P/Q is equal to R/S, where P, Q, R and S are 4 resistances, out of which 3 resistances, say P, Q and R, are known, while the 4th resistance S is unknown. व्हीटस्टोन ब्रिज 4 रेजिस्टेंसेस का, डिफरेंट रेजिस्टेंसेस का एक अरेंजमेंट है, जिसमें कि एक गैलोनोमीटर भी होता है उसके डायगोनल आर्म में, BD में गैलोनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस जो है कैपिटल G है, इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो IG है। इसके हेल्प से हम कोई अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं अगर अदर 3 रेजिस्टेंसेस आर नोन। अगर 3 रेजिस्टेंसेस मालूम है तो चौथे अननोन रेजिस्टेंस S को हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन एक इंग्लैंड के साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने 4 रेजिस्टेंसेस का एक अरेंजमेंट को दिया, जो कि कनेक्ट है इस डायग्राम के अनुसार। ये फिगर 3 हमने इसको दिखाया है, रिप्रेजेंट किया है व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट में 4 रेजिस्टेंसेस, AB आर्म में, AB कंडक्टर, AB वायर है, उसका रेजिस्टेंस P है, BC वायर का Q है, AD वायर का रेजिस्टेंस R है जिसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है, और CD वायर का या CD कंडक्टर का रेजिस्टेंस S है, और इसके डायगोनल आर्म BD में एक गैलोनोमीटर कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल G है। दिस इज द सिंबल ऑफ गैलोनोमीटर। ये निडल, ए सर्किल एंड ए निडल इनसाइड द सर्किल इज द सिंबल ऑफ ए गैलोनोमीटर। तो इस सर्किट में बैटरी से B1 से, बैटरी B1 यहाँ की K है, की प्लग की हो सकता है या प्रेस की हो सकता है। प्रेस की को दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो सर्किट पूरा हो गया, या प्लग उसमें लगाएंगे तो सर्किट पूरा होगा और करंट फ्लो करने लगेगा। यहाँ करंट का डायरेक्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से होकर के ये दिखाया गया है, पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वेंशनल करंट का फ्लो है। और ये पॉइंट पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, इसमें करंट I1 P रेजिस्टेंस P से होकर और दूसरा पार्ट I2 ये रेजिस्टेंस R से होकर, और फिर B पॉइंट पर फर्दर करंट का डिवीजन होगा, एक पार्ट IG गैलोनोमीटर से। हालांकि गैलोनोमीटर से बहुत स्मॉल करंट फ्लो करता है, लेकिन फिर भी करंट यहाँ पर IG कंसीडर किए हैं, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द करंट I1 यहाँ B तक पहुँचे। I1 जो रेजिस्टेंस, जो करंट I1 रेजिस्टेंस P से होकर फ्लो कर रहा था वही B पर डिवाइड हो गया 2 पार्ट में। करंट IG थ्रू द गैलोनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द करंट विल फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस कैपिटल Q। I1 माइनस IG, उसको I3, वी कैन से इट I3। और फिर यहाँ पर जो है C तक जो है करंट I1 माइनस IG जो रेजिस्टेंस Q से होकर फ्लो किया, और यहाँ B से गैलोनोमीटर से जो करंट IG है वह D तक पहुँचा,
और यहाँ पर ये करंट ऊपर से जो करंट आ रहा था, मेन करंट आई, जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, P रेजिस्टेंस से होकर I1 और R रेजिस्टेंस से होकर I2, तो ये I2 करंट R रेजिस्टेंस से होकर D पॉइंट पर रीच करेगा, पहुँचेगा, और यहाँ से BD पार्ट में, जिसमें गैल्वेनोमीटर है, डायगोनल आर्म है ये व्हीटरस्टोन ब्रिज का, इसमें IG करंट यहाँ पर पहुँचा D पर I2 R से होकर, और यहाँ गैल्वेनोमीटर से IG, तो डेट इज टोटल करंट I2 प्लस IG, एंड दिस करंट I2 प्लस IG इक्वल टू, वी कैन राइट इट एज I4, इसको I4 मान सकते हैं, दोनों का सम I2 प्लस I4 IG को, और ये करंट ये रेजिस्टेंस S से होकर के C तक रीच करेगा, पहुँचेगा C पॉइंट तक, जो कि ये लास्ट ये जो है ये व्हीटरस्टोन ब्रिज का ये ABC थर्ड पॉइंट है, और फोर्थ पॉइंट इज D, और यहाँ से करंट A पॉइंट से करंट इंटर किया था और C पॉइंट से करंट लीव कर रहा है, बाहर निकल रहा है सर्किट में, लेकिन करंट जितना इंटर किया है उतना ही होना चाहिए, हो भी रहा है C पर। ऊपर से करंट, दोनों करंट जो है हो गया BC से होकर, BC वायर से होकर, जो रेजिस्टेंस उसमें Q लगा हुआ है, उससे करंट जो है I1 माइनस IG, और इस रेजिस्टेंस से I2 प्लस IG, टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस IG माइनस IG विल कैंसिल आउट। नाउ अप्लाइंग किरचॉफ फर्स्ट रूल एट द जंक्शन A, आइदर एट A और एट द जंक्शन C, बिकॉज टोटल करंट एट जंक्शन A इज I, दैट इज I1 प्लस I2, ये डिवाइड हो गया दो पार्ट में, दोनों रेजिस्टेंस से होकर, और यहाँ C पर भी I1 प्लस I2, BC आर्म में करंट, टोटल करंट हो गया, BC आर्म और DC आर्म का टोटल करंट मिलकर के I1 प्लस I2 इक्वल टू I हो गया। तो अप्लाइंग किरचॉफ फर्स्ट रूल एट आइदर एट जंक्शन A और एट द जंक्शन C, तो यूजिंग किरचॉफ करंट रूल KCL लिखते हैं, किरचॉफ फर्स्ट रूल KCL एट द जंक्शन A, कैपिटल A और C, एट A और C, क्या होगा? इनकमिंग करंट I1 इज टेकन एज पॉजिटिव, वाइल आउट गोइंग करंट I1 एंड I2 आर टेकन एज नेगेटिव, सो टोटल करंट एट A इज I माइनस I1 माइनस I2 इक्वल टू 0, दैट इज साइड चेंज करेंगे, I1 I2 बोथ नेगेटिव, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2, तो आई कैन राइट इट हेयर I इक्वल टू I1 प्लस I2, और जंक्शन C पर भी वही बात है, I1 प्लस I2 इक्वल टू I, जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है पॉजिटिव C पर, दोनों करंट, और जो बाहर निकल रहा है नेगेटिव, तो फिर ये I1 प्लस I2 इक्वल टू I। तो फर्स्ट रूल अप्लाई हो गया जंक्शन A और C पर। अब सेकेंड रूल अप्लाई करना है, जिससे कि हमारा ये कंडीशन मिलेगा। नाउ यूजिंग KVL, किरचॉफ वोल्टेज रूल और किरचॉफ सेकेंड रूल KVL इन बोथ ब्रांचेज, बोथ क्लोज लूप्स A B D A, ये फर्स्ट क्लोज लूप हो गया, 1 घेर कर इंसर्किल कर देते हैं, 1 and 2 दोनों को इंसर्किल कर देते हैं, क्लोज लूप A B D A एंड B C D B, KVL इन द क्लोज लूप्स और क्लोज सर्किट्स 1 and 2 मीन्स A B D A एंड B C D B, 1 and 2 मीन्स A B D A 1 है, 1 को इंसर्किल किया है इसके अंदर, और B C D B क्लोज लूप इज टेकन एज 2। वी हैव नाउ अप्लाइंग किरचॉफ सेकेंड रूल, प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंसेस एंड डिफरेंट आर्म्स और ब्रांचेज ऑफ ए क्लोज लूप इज 0। तो यहाँ पर देखिए दोनों क्लोज सर्किट के अंदर में कोई सेल नहीं है, ये सेल है तो बाहर से करंट, इसमें बैटरी B1 से करंट सप्लाई हो रहा है I, जो कि दो पार्ट में डिवाइड हुआ है I1 I2, फिर फर्दर डिवाइड हो गया है गैल्वेनोमीटर में IG, और रिमेनिंग पार्ट रेजिस्टेंस Q से होकर I1 माइनस IG विच इज I3, और यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस R से होकर के I2, और यहाँ पर फिर करंट IG ऊपर से BD आर्म में, और यहाँ से R रेजिस्टेंस का करंट I2, दोनों ऐड होकर कंबाइन होकर I2 प्लस IG, इसको I4 हम मान सकते हैं, इसमें फ्लो कर रहा है रेजिस्टेंस S से होकर। तो ये करंट का डायरेक्शन जो है, हमने बतलाया था कि पोटेंशियल डिफरेंस, ये करंट का डायरेक्शन और पोटेंशियल डिफरेंस को क्लोज लूप में, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्शंस को आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम कंसीडर कर सकते हैं। अगर क्लॉकवाइज में हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव होगा। तो नंबर ऑफ लूप्स इसमें करंट का डायरेक्शन सेम है, वह है AB, फिर जो है BD, तो इसको हम फॉलो करते हैं क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव हम यहाँ सपोज कर सकते हैं, क्लॉकवाइज नेगेटिव भी किया जा सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको नेगेटिव भी सपोज किया जा सकता है। तो I1 इंटू P इन द क्लोज लूप 1, I1 मल्टीप्लाइड बाई P प्लस, अब देखें इसमें क्लॉकवाइज जा रहा है, करंट IG गैल्वेनोमीटर से होकर, रेजिस्टेंस G है, IG इंटू G प्लस IG इंटू G। अब देखिए यहाँ पर पाथ जो है, करंट पाथ जो है आपका, करंट का डायरेक्शन इसमें I2 है, और पाथ जो क्लॉकवाइज का हम फॉलो कर रहे हैं उसके अनुसार D2A होना चाहिए था, लेकिन करंट का डायरेक्शन इसमें एंटी क्लॉक हो रहा है,
तो इसमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है निगेटिव लेना पड़ेगा। इसका क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया है पोटेंशियल डिफरेंस, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव। देयरफॉर I2 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आर, करंट इज I2 इंटू आर, माइनस I2 इंटू आर इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर ये 1, I इक्वल टू I1 प्लस I2 एट जंक्शन ए और सी पर अप्लाई किया था किरचॉफ फर्स्ट रूल। और क्लोज लूप 1 में मतलब ए बी डी ए में जो हमने अप्लाई किया किरचॉफ सेकंड रूल, वहाँ ये I1 इंटू पी, करंट इंटू प्रोडक्ट ऑफ करंट इंटू रेजिस्टेंस। यहाँ क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है पोटेंशियल डिफरेंस, एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव। एंड इन क्लोज लूप 2 अब यहाँ IG देखिए, नंबर ऑफ पाथ्स इन विच डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम इज BD एंड DC, whereas in part BC the current is in clockwise direction, while in both branches BD and DC the direction of current is anti-clockwise. So we should take in potential difference across the galvanometer and across the resistance S as anti-clockwise negative, while across potential difference across Q should be taken as here as positive. So now minus IG current into रेजिस्टेंस एंटी क्लॉकवाइज इधर देख रहे हैं। इसमें पहले नंबर ऑफ ब्रांचेज जिसमें करंट का डायरेक्शन सेम है वो BD और DC है, लेकिन करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तो माइनस IG इंटू G इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, प्लस नाउ रेजिस्टेंस IG इंटू G प्लस I2 प्लस IG इंटू S, करंट I2 प्लस IG इन रेजिस्टेंस S। तो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, सबका करंट प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस का अलजेब्रिक सम हम ले रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पर जो करंट का जो डायरेक्शन है ये दिस शुड ऑल्सो बी टेकन एज नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज। नाउ दिस शुड I1 माइनस IG इज टू I3, द करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस Q in the reverse direction to that of galvanometer and S. So that is in clockwise direction. So potential difference across Q should be taken as positive here. Plus I1 minus IG into Q, capital Q is equal to 0. And this is equation number 3. Now we have to obtain the condition of equilibrium of Wheatstone bridge. हमको Wheatstone bridge सर्किट का कंडीशन, इक्विलिब्रियम का कंडीशन ऑब्टेन करना है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को इक्विलिब्रियम में कब कहा जाएगा? उस स्थिति में कहा जाएगा जब दोनों पॉइंट बी और डी का पोटेंशियल सेम हो, माने पोटेंशियल एट बी एंड डी विल बी सेम, देन बोथ पॉइंट्स, देन द व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी इन द इक्विलिब्रियम। मतलब बैलेंस पॉइंट के लिए बी और डी के बीच का पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, VB माइनस VD इक्वल टू 0। और जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा तो ओम्स लॉ से I वेरीज एच V, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो जो करंट यहाँ A से B पर पहुँच जा रहा है वही करंट सीधे डायरेक्टली C में चला जाएगा, क्योंकि उस सिचुएशन में ये जो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर, ये समझिए डिसअपीयर हो जाएगा, ये समझिए है ही नहीं। जब कंडीशन इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो कोई करंट इसमें नहीं जाएगा। गैल्वेनोमीटर को हटा भी देंगे, रिमूव भी कर देंगे तो कोई उसमें अंतर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है। तो जो करंट I1 माने ये रेजिस्टेंस P से होकर I1 जा रहा है वह बिना माने गैल्वेनोमीटर में गए हुए सीधे वही करंट ट्रांसफर हो जाएगा इसमें। तो ये दोनों रेजिस्टेंस जो है P और Q सीरीज में हो जाएगा उस सिचुएशन में। अब फिर I2 जो होगा सीधे ट्रांसफर हो जाएगा रेजिस्टेंस R से सीधे S में, तो ये दोनों रेजिस्टेंस भी आपस में सीरीज में हो जाएगा। और दोनों का कनेक्शन जो है P प्लस Q और यहाँ R प्लस A आपस में फिर पैरेलल में हो जाएगा। तो इस ढंग से व्हीटस्टोन से ब्रिज का कंडीशन का यूज करते हुए, इक्विलिब्रियम के कंडीशन का यूज करते हुए काफ़ी जो प्रॉब्लम्स है इस पर उसको सिंपल किया जा सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स इस पर हो सकता है, होता है। प्रॉब्लम्स हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में इस पर, व्हीटस्टोन ब्रिज पर और किरचॉफ सेकंड रूल पर। तो नाउ फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज IG is equal to 0, there will no current through the galvanometer because in that case points B and D will remain at the same potential. So potential difference between 2 points is 0. I potential difference is 0, then no current will flow through the galvanometer. Now for equilibrium of Wheatstone bridge IG is equal to 0. Current through the galvanometer should be 0. अब इसमें दोनों में हम दो इक्वेशन 2 और 3 में IG 0 पुट कर देंगे तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ Wheatstone ब्रिज ऑब्टेन हो जाएगा। Now for the equilibrium of Wheatstone bridge, current IG through the galvanometer should be taken as 0. So putting IG is equal to 0 in equations 2 and 3,
पुटिंग फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ वीटरस्टोन ब्रिज फॉर द, जैसा कि हमने बतलाया कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होना चाहिए बी और डी का, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, तो ओम्स लॉ से करंट भी जीरो हो जाएगा, बिकॉज आई वेरीज एच भी, आई जो होता है करंट वह पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा बी और डी के बीच में, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ ए वीटरस्टोन ब्रिज कोई करंट फ्लो नहीं करेगा बीडीआर में, तो आई जी जीरो, पुटिंग आई जी इक्वल टू जीरो इन इक्वेशंस 2 and 3, पुटिंग नो करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, पुटिंग आई जी इक्वल टू जीरो इन इक्वेशंस 2 and 3, जो कि हमने किरचॉफ सेकेंड रूल दोनों क्लोज लूप 1 और 2 में अप्लाई करके ऑब्टेन किया था। इन इक्वेशन 2 and 3 वी गेट, इसमें आई जी जीरो करेंगे तो I1P माइनस I2R इक्वल टू जीरो, दैट इज I1P इक्वल टू I2R, I1P माइनस I2R इक्वल टू जीरो, आई जी यहाँ जीरो हो जाएगा, तो सीधे हम लिख सकते हैं I1P माइनस I2R इक्वल टू जीरो, और इसको साइड चेंज करेंगे माइनस I2R तो प्लस I2R, तो I1P इक्वल टू I2R, I2 इंटू R, और इसको हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट डाउन इट P बाई R इक्वल्स टू I2 बाई I1, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, P बाई R इक्वल्स टू I2 बाई I1, इसी को P अपॉन R इक्वल टू I2 अपॉन I1 रेशियो के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, इसी को इस चीज़ को। नाउ इन इक्वेशन पुटिंग आई जी इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन 3, तो फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगा और यहाँ बचेगा माइनस I2S, आई जी जीरो होगा, प्लस I1Q इक्वल टू जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ये टर्म माइनस I2S प्लस I1Q इक्वल टू जीरो, दैट इज एंड I1Q माइनस I2S, आई जी जीरो हो जाएगा, तो अब माइनस I2S होगा, साइड चेंज करेंगे क्योंकि जीरो है, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंसेस इन डिफरेंट ब्रांच ऑफ ए क्लोज सर्किट इज इक्वल टू जीरो, तो ये साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस I2S है तो प्लस I2S हो जाएगा, तो I1Q इक्वल टू I2 प्लस I2 इंटू S, और वी कैन राइट इट एज Q बाई S, Q अपॉन S इक्वल्स टू I2 अपॉन I1, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा ऊपर वाला टर्म। अब ये दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशंस 4 and 5 वी कैन गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशंस 4 and 5 we can obtain the condition of equilibrium of a Wheatstone bridge. So from equations 4 and 5 we get equation 4 और equation 5 के दोनों in right RHS of equation both equation 4 and 5 the term is I2 by I1. So RHS are equal. RHS of both equations 4 and 5 are equal. Therefore, LHS will automatically equal. Therefore, we get P by R. P by R is equal to I2 by I1. Q by S is also I2 by I1. So, therefore, P by R is equal to P by R equals to Q by S, or therefore P by Q is equal to R upon S. This is the required condition of equilibrium of a Wheatstone bridge. दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, P बाई क्यू इजकल टू, इसको एक्सचेंज कर दिए P बाई क्यू, P को Q को यहाँ ला दे डिनोमिनेटर में और R को ऊपर दूसरे साइड में लेगा न्यूमरेटर में, तो P बाई क्यू इजकल टू R बाई एस। अगर इसमें से P, Q और R का वैल्यू मालूम हो, नोन हो, तो S का वैल्यू हम जो अननोन रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं इस कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज से। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, P बाई क्यू इजकल टू R बाई एस। मतलब क्या हुआ, मीनिंग इसका हुआ, एक साइड में व्हीटस्टोन ब्रिज में जो चार रेजिस्टेंसेस है कनेक्टेड, तो उसमें एक साइड के दो रेजिस्टेंस का रेशियो P बाई R और दूसरे साइड के दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो Q बाई S अगर इक्वल हो तो कोई करंट B और D से माने तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। उस सिचुएशन में दोनों पॉइंट B और D सेम पोटेंशियल पर हो जाएगा, तो दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, नो करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। एक साइड के व्हीटस्टोन ब्रिज के एक साइड के दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो P बाई क्यू इजकल टू अपर पार्ट का दोनों P बाई R इजकल टू Q बाई S भी कर सकते हैं, और नहीं तो P बाई क्यू अपर पार्ट के दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो और लोअर पार्ट के दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो अगर सेम है तो वो जो है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हो जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज का, और उस सिचुएशन में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा।
So this is this part. That is part 13. In the next part, we will discuss the problems, interesting problems based on which are based on condition of equilibrium of Petersson bridge and Kirchhoff's rule. Thank you very much.